و بنی ہے وشیت ہی و موالی ہے و اجلا عیوننا بالبقاء و ازائہ والصلاة والسلام علی النبی الامی القاشی یبتہی بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ القرآن المجید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب فاطمہ زہرا حجت کبریٰ ہیں، آیت کبریٰ ہے اور اللہ کے حجت بالغہ ہیں، عصمت کبریٰ کے اوپر فائز ہیں۔ اللہ اور نبی کے نزدیک جو منزلت، جو شرف، جو وقار، جو عزت، جو احترام جناب فاطمہ زہرا کا ہے وہ خلائق میں کسی اور کا نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں یا ملائکہ ہوں، حتیٰ کہ امام ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ جناب فاطمہ زہرا اللہ کی حجت بالغہ ہے، حجت کبریٰ ہے، اسماء حسنیٰ ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی معرفت ہو جائے، اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے شرط ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اسماء الہی کا توسل کرو، اسماء الہی کے ذریعے اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے اپنے مشکلات حل کرواؤ۔ بغیر اسماء الہی کے اللہ تمہاری مشکلات کو حل کرنے والا نہیں ہے، تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی معرفت ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسماء الہی کا سہارا لو۔ اسماء الہی کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ اسماء الہی سے وہ افراد مراد ہیں کہ جن سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، جو اس کی معرفت کا ذریعہ ہیں۔ اسی لیے آل محمد کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، نحنو وجہ اللہ المعرفہ، ہم ہی اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہیں۔ جو بھی آل محمد کے واسطے سے اللہ سے توسل کرے گا، اللہ اس کی دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ چھٹے امام بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، نحنو واللہ الاسماء الحسنی، اللہ کی قسم ہم ہی اللہ کے اسماء حسنی ہیں۔ ان اللہ لا يقبل العباد عملا لا يقبل اللہ عملا بالعباد الا بمعرفتنا، اللہ کسی بندے کے اعمال کو اس وقت تک قبول ہی نہیں کرتا جب تک وہ ہم آل محمد کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ اللہ کے پاس مثل اعلیٰ ہے، یعنی وہ زمین میں بھی مثل ہے، آسمان میں بھی مثل ہے۔ جناب عیسیٰ کے لیے اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، ہم نے عیسیٰ کو ایک قریے کے لیے، ایک قبیلے کے لیے مثل بنا کر پیش کیا۔ یعنی جناب عیسیٰ ایک قبیلے کے لیے مثل ہیں، لیکن اللہ کے پاس ایسے مثل ہیں جو زمین میں بھی مثل ہیں، آسمان والوں کے لیے بھی مثل ہیں۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں تفسیر برہان میں، نحنو مثل الاعلیٰ، ہم ہی اللہ کے مثل اعلیٰ ہیں، نحنو حجت الکبریٰ، نحنو اسماء الحسنی، ہم ہی اللہ کے اسماء حسنی ہیں، ہم ہی اللہ کے حجت کبریٰ ہیں، ہم ہی اللہ کے حجت کبریٰ ہیں۔ تو اسماء الہی سے مراد آل محمد ہیں، اور جو بھی ان کے بغیر اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے گا، اس آیت سے پہلے اللہ نے سزا بھی سنا دی ہے، مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کلب کی طرح ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ بِأَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی ان اسماء کے بغیر اللہ سے توسل کرے گا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے گا، ہم اسے ضرور سزا دیں گے، ہم اسے اس کی ضرور گرفت کریں گے۔ جو بھی ان کے بغیر اللہ سے توسل کرے گا، جو ان آیات کو جھٹلائے گا، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، جو بھی آیات الہی کی تکذیب کرے گا،
करेगा, यानी आइम्मा की तकज़ीब करेगा, तो हम उनकी ज़रूर गिरफ्त करेंगे और इस तरह गिरफ्त करेंगे कि उसे एहसास भी नहीं होगा। यही वो अफराद हैं जो कहते हुए नजर आते हैं, यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना क़ुर्रतु अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये कहते हैं कि परवरदिगार, तू हमारी आंखों को हमारी अज़वाज से, हमारी ज़ुर्रियत से तू हमारी आंखों को ठंडक अता कर और हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। तफसीर में यह मिला कि अज़वाज से मुराद जनाब खतीजा हैं और ज़ुर्रियत से मुराद जनाब फ़ातिमा ज़हरा हैं और क़ुर्रता आयुनिन से मुराद इमाम हसन और इमाम हुसैन हैं। और कहा कि लिलमुत्तक़ीना इमामा, हमें मुत्तकीन का इमाम बना दें, इससे मुराद आइम्मा अलैहिमुस्सलाम हैं। कहा कि उलाइकल लज़ीना युजज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू वयुलक़ून फ़ीहा तहियतम व सलामा। जन्नत में हम इन्हें आला मकाम अता करेंगे। दुनिया में जो इन्होंने सब्र किया है, हम इनके मकाम को बुलंद करेंगे। और कहा इसके फौरन बाद अल्लाह ने कहा, कुल मा याबू बिकुम रब्बी लौला दुआएकुम। अगर ये अफराद ना होते, अगर इन अफराद की दुआएं ना होती तो अल्लाह तुम्हारी परवाह ना करता। यानी इनकी वजह से तुम्हारी मुश्किलें आसान हो रही हैं, इनकी वजह से तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही हैं। ये अफराद ना होते तो अल्लाह तुम्हारी परवाह ना करता, किसी की भी परवाह ना करता अगर इनकी दुआएं ना होती, अगर ये अफराद ना होते। यही तो मासूम कहते हुए नजर आते हैं, बेकुम फतह अल्लाह बेकुम यख्तिम बेकुम युनज़्ज़लुल गैस। इन्हीं की वजह से अल्लाह मुश्किलें आसान करता है, इन्हीं की वजह से अल्लाह बारिश नाजिल करता है, इन्हीं की वजह से अल्लाह तुम्हारी दुआएं सुनता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यही वो अफराद हैं जो तमाम उम्मतों के कायद और सरदार हैं। ज़ारत जामिया में इसी की तरफ इशारा होता है, वह क़ादतिल उम्म व औलिया इन नियम, यानी ये तमाम उम्मतों के कायद और सरदार हैं, चाहे वो गुज़िश्ता उम्मतें हों या आने वाली उम्मतें हों, चाहे वो मलाइका में से हों या अंबिया में से हों, हशरात में से हों, जिन्नातों में से हों, इंसानों में से हों, तमाम उम्मतों के कायद और सरदार आले मोहम्मद हैं। इन्हीं के अस्मा के ज़रिए दुआएं की जाती हैं, इन्हीं का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ की जाती है, अल्लाह मुश्किलात को आसान करता है, इन्हीं के अस्मा को वसीला बनाया जाता है। चुनांचे फ्रांस का एक वाक़या है कि वहाँ के लोग इसमें हैदर से अपनी मुश्किलें आसान करते थे, तवस्सुल करते थे और अल्लाह से दुआएं करते थे। एक मर्तबा ये किया कि जिस दीवार पर इसमें हैदर लिखा हुआ था उसके सामने उन्होंने एक अजदहे के मुजस्समे को लाकर रख दिया। क्या हुआ कि उस इसमें हैदर से एक नूर निकला, एक रोशनी निकली कि जिसकी वजह से उस अजदहे को उस नूर ने ख़त्म कर दिया। उस नूर की वजह से वो अजदहा राख में तब्दील हो गया। यानी जब इसमें हैदर अजदहे को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वजूद हैदर अजदहे को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तो जिसे आले मोहम्मद की मारफत हो जाती है तो अल्लाह उसे कायनात के ऊपर तसल्लुत अता कर देता है। यही वजह है कि मौलाए कायनात अपने असहाब को लेकर दुनिया की अजायबात का मुशाहिदा करने निकलते हैं। एक सहरा में पहुंचे तो क्या देखा कि एक परिंदा है, ना वहां पर खाने का इंतजाम है, ना पीने का इंतजाम है, तो वो जिंदा कैसे है? एक मर्तबा उस परिंदे को आवाज दी, वो परिंदा आता है, सलाम करता है। मौला ने उससे पूछा, ये बता कि इस सहरा में तू जिंदा कैसे है, कैसे तेरी जिंदगी गुजर रही है? उसने कहा कि हमारे आबाओ अजदाद में से रसूल इस्लाम के पास एक परिंदा गया था और रसूल इस्लाम ने ये बताया था अगर कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो तो आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत भेजना, आले मोहम्मद पर सलावात भेजना, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल को आसान कर देगा। कहा कि मैं जब मुझे प्यास लगती है तो आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत भेजता हूँ, जब मुझे भूख लगती है तो मैं आले मोहम्मद के ऊपर सलावात भेजता हूँ। मालूम ये हुआ अगर किसी को आले मोहम्मद की मारफत हो जाती है तो अल्लाह उसे खाने और पानी से मुस्तगनी कर देता है, अल्लाह उसे खाने और पानी से मुस्तगनी कर देता है। यही वजह है कि छठे इमाम की एक दुआ है। इमाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बे इस्मिका अल्लज़ी इब्तदाता
अजाइब उल खल्क फी गामिज़िल इल्म वबजूद जमाल वजह का परवरदिगार, मैं तुझसे उन अस्मा का वास्ता देता हूँ कि जिन अस्मा के ज़रिए तूने अजायबात को खल्क किया है, इल्म की गहराई में अजायबात को खल्क किया है। मैं तेरे चेहरे के वास्ते से तवस्सुल करता हूँ। व असअलो का बे इसम का अल्लज़ी तजल्लता ले कलीमिन अला जबलिन फलम्मा बदा शुआए नूरिल हजब मिन हिजाब अज़मत ही असबता मारफतों का फ़ी क़ुलूबिल आरिफीन बे मारफत तौहीद का। कहा कि उन अस्मा का तुझे वास्ता देता हूँ जो जनाबे मूसा के लिए कोहे तूर पर चमके। कोहे तूर पर जनाबे मूसा के लिए जिन अस्मा के लिए जनाबे मूसा ने दुआ की, उन अस्मा का तुझे वास्ता देता हूँ। जब ये नूर, इस नूर ने तजल्ली की, इस नूर के तजल्ली करने से, इस नूर के चमकने से आरिफीन के क़ुलूब में तेरी मारफत हो गई। यानी ये नूर जब चमका तो मूसा जैसा नबी बर्दाश्त न कर सका, बेहोश हो गया। एक नूर ये है कि जनाबे मूसा बेहोश हो जाते हैं। एक नूर और है कि जिसे मलाइका बर्दाश्त न कर सके। जब अल्लाह ने तमाम खलाइक को अपने जब अल्लाह ने आले मोहम्मद को अपने नूर से खल किया, नूर मोहम्मद से अर्श को खल किया, नूर अली से मलाइका को खल किया, नूर फातिमा से अल्लाह ने ज़मीनो आसमान को खल किया, नूर हसन से अल्लाह ने शम्सो कमर को खल किया, नूर इमाम हुसैन से अल्लाह ने जन्नत को और गिलमान को जब खल्क कर लिया और नूर फातिमा को जाहिर करना चाहा तो एक कंदील में नूर फातिमा रखा। जैसे ही नूर फातिमा जाहिर होता है तो ये मलाइका की आंखें खीरा हो जाती है, जमीन और आसमान रोशन हो जाते हैं। वह अशरक़तिल अर्ज़ु बे नूर रब्बिहा, जमीन और आसमान रोशन हो जाते हैं, मलाइका की आंखें खीरा हो जाते हैं, बेसाख्ता सजदे में गिर जाते हैं। एक मर्तबा उस नूर को देखकर ये फरिश्ते, ये तमाम मलाइका सजदे में चले जाते हैं। जब सजदे से सर उठाया, कहा कि परवरदिगार ये किस हस्ती का नूर है, हमारी आंखें खीरा हो गई हैं। ऐ परवरदिगार ये किसका नूर है? कहा मेरे हबीब की बेटी का नूर है। मैं इससे ऐसे आइम्मा को पैदा करूंगा, खल्क करूंगा जो मेरे अमर की हिदायत करने वाले होंगे। उन्हीं की वजह से मैं कायनात को खल्क करूंगा और उन्हीं की वजह से मैं दुआएं मुस्तजाब करूंगा। वो तमाम खलाक में सबसे अफजल वो आला होंगे। यानी ये नूर फातिमा को देखकर फरिश्तों की आंखें खीरा हो जाती हैं, वो सजदे में चले जाते हैं तो किसी को एतराज नहीं होता। अगर इनकी जरी के सामने कोई सजदाए शुक्र करता है तो एतराज होने लगता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। है कि छठे इमाम कहते हैं इन्ना फिल जन्नते कुब्बतुन मिन याकूत हमरा। कहा कि जन्नत में सुर्ख याकूत का एक कुब्बा है। इर्तफाउहा फिल हवा फी मसीरति सना, और वो हवा में मुअल्लक है, एक साल की मसाफत के बराबर वो हवा में मुअल्लक है। और मुअल्लक़तुन बिक़ुदरतिल जब्बार, अल्लाह की कुदरत से वो मुअल्लक है। और वो इर्तफाउहा, और बुलंदी पर उसका रुकने का कोई सहारा नहीं है। न आसमान के ऊपर बुलंदी पर वो रुका हुआ है, वला दिआमतन फतलज़मुहा, और न जमीन में नीचे की तरफ उसको कोई चीज सहारा दिए हुए है। वलहा मैत अल्फ बाब, और उस कुब्बे के 1,00,000 दरवाजे हैं। वो अला कुल्ले बाब अल्फ मलाइका, और हर दरवाजे पर 1,000 फरिश्ते हैं। यज़हरो बिलफुक अलल उफुक व यरा अहलल जन्नत कमा यरा अहदुकुम अल कौकबे दुर्री। कहा कि अहले जन्नत वाले उस कुब्बे को इसी तरह देखते हैं जिस तरह तुम दुनिया में रहकर सितारों का मुशाहिदा करते हो। जिस तरह तुम सितारों को देखते हो इसी तरह अहले जन्नत उस कुब्बे को देखते हैं। और एज़ा यज़हरो अलल उफुक, जब वो
कुब्बे से नूर निकलता है तो अहले जन्नत कहते हैं हाज़िही नूर फातिमा, ये फातिमा का नूर है, ये कुब्बा फातिमा ज़हरा के लिए है। इमाम कहते हैं इसी वजह से फातिमा को ज़हरा कहा जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जनाब फातिमा ज़हरा हुज्जत कुबरा हैं, हुज्जत बालिगा हैं, इसलिए कि मासूम खुद कहते हुए नजर आते हैं नहनो हुज्जतुल्लाह अलल खलाइक व जद्दतुना फातिमा हुज्जतुन अलैना, हम तमाम खलाइक के ऊपर हुज्जत हैं और हमारी जद्दा फातिमा ज़हरा हमारे ऊपर हुज्जत हैं। मासूम कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी जद्दा फातिमा हमारे लिए नमूनाए अमल हैं। यही नहीं, हदीस कुदसी में इरशाद होता है कि मैंने इस पूरी कायनात को अगर खल किया है तो रसूल के सदक़े में खल किया है, और रसूल को अगर खल किया है तो अली की वजह से खल किया है, और अगर मैंने अली और रसूल को खल किया है लौला फातिमा ला खलक़तुकुमा, अगर जनाब फातिमा ज़हरा ना होती तो मैं तुम दोनों को भी खल्क़ ना करता, तुम दोनों को खल्क ना करता। इस तरह इमाम मासूम कहते हुए नजर आते हैं मा तकामुलतिन नबुव्वतो इल्ला बिमारिफतिहा व मोहब्बतिहा, अगर नबियों को नबुव्वत मिली है तो जनाब फातिमा ज़हरा की मोहब्बत का इकरार करने के बाद मिली है। तो जब नबियों को नबुव्वत बगैर फातिमा ज़हरा की मोहब्बत के नबियों को नबुव्वतें नहीं मिल सकती, तो बगैर फातिमा ज़हरा की मोहब्बत का इकरार किए हुए तुम्हें अल्लाह की मारिफत कैसे हो सकती है, रसूल की मारिफत कैसे हो सकती है, तुम्हें जन्नत कैसे मिल सकती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसलिए कि जनाब फातिमा ज़हरा हुज्जत बालिगा है, इस्मत कुबरा के ऊपर फाइज हैं, अल्लाह की हुज्जत हैं। और मुबाहले में जब नबी ने देखा कि बातों से इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, दलीलों से इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, कलम की ताकत इनके ऊपर असर अंदाज नहीं है, तलवार की ताकत इनके ऊपर असर अंदाज नहीं है, यानी जहां दलीलें नाकाम हों, जहां बातों से काम ना चले, तलवार की ताकत से काम ना चले, कलम की ताकत से काम ना चले, आवाज़ रब्बानी आती है ऐ मेरे हबीब अब तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है कि जो हुज्जत बालिगा है, जो हुज्जत कुबरा है, उसे इनके सामने पेश कर दो। अब नबी ने यही किया, जनाब फातिमा ज़हरा को लेके चलते हैं। जनाब फातिमा ज़हरा नबुव्वत और इमामत के हिसार में चलती है, यानी जनाब फातिमा ज़हरा नबुव्वत और इमामत के इत्तिसाल का नाम है। आगे आगे नबुव्वत है, पीछे इमामत है, यानी नबुव्वत और इमामत के इत्तिसाल को फातिमा कहते हैं। यानी अगर नबुव्वत और इमामत समझी जाती है तो जनाब फातिमा ज़हरा की वजह से समझ में आती है। अगर तुमने रिसालत को बगैर फातिमा ज़हरा के समझ में समझना चाहा, ना तुम्हारी समझ में रिसालत आएगी, ना तुम्हारी समझ में इमामत आएगी। यानी जहां दलीलें नाकाम होती हैं, जहां कलम की ताकत नाकाम होती है, जहां बातों से कोई असर नहीं होता, वहां नबी हुज्जत बालिगा जनाब फातिमा ज़हरा जैसी हुज्जत को पेश करते हैं। और जनाब फातिमा ज़हरा यानी मुबाहले में मरकज की हैसियत रखती है, तहारत में भी मरकज की हैसियत रखती है। इसी तरह इसी वजह से तारुफ कराया गया, हम फातिमा तो वो अबूहा वो बालोहा वो बनुहा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद नारे जनाब फातिमा ज़हरा नबी की मेहनत, नबी के सजदों का नाम फातिमा ज़हरा है। शायर कहता है ए जबीने मोहम्मद ये तो बता कितने सजदों का सिला फातिमा है, यानी नबी के सजदों का समर फातिमा है। अल्लाह ने नबी को रिसालत अता की, खातिमुन नबीयीन के ओहदे पर अल्लाह ने फायज किया, लेकिन ये नहीं कहा वला सोफा योती का रब्बो का फतरजा, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना की सनद दे दी। तमाम खलाइक के ऊपर अल्लाह ने रसूल को तसल्लुत अता कर दिया
اور रहमतुल लिल आलमीन बनाकर रसूल को भेजा, लेकिन ये नहीं कहा वला सौफा योती का रब्बुका फतरजा। लेकिन जब जनाब फातिमा जहरा को देना चाहा तो ख़ास एहतमाम किया, कहा कि ए मेरे हबीब, हम अपने ख़जाने कुदरत से एक ऐसा ख़जाना देना चाहते हैं, एक ऐसा हदिया देना चाहते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, उसका कुछ एहतमाम है ना। अल्लाह ने ऐसा एहतमाम किया, कहा नबी को अपने पास बुलाया, बुलाने के बाद बहुत एहतमाम के साथ इस खजाने को दिया, इस हदिये को दिया, और सूरह कौसर की शक्ल में कुछ शर्तें भी अल्लाह ने लगा दी है। कहा कि ये खजाना, ये हदिया हम तुम्हें दे तो रहे हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। जब भी ये हदिया तुम्हारे पास आए, ये खजाने के ऊपर तुम्हारी नजर पड़े, तो तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि इसे सलाम किया जाए, इसे अपने मकाम पर बिठाया जाए। तुम्हारे ऊपर जरूरी है कि नमाज भी अदा करें और कुर्बानी भी अदा करें। तो नबी जो जनाब फातिमा जहरा की अजमत करते हैं, इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, सलाम के लिए, ताज़ीम के लिए, यानी मौलाए कायनात के लिए वो एहतराम नहीं है, मौलाए कायनात के लिए अपनी जगह से खड़े नहीं होते हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए खड़े नहीं होते हैं। लेकिन जब जनाब फातिमा जहरा आती हैं, नबी अपने मकाम से उठकर सलाम करते हैं, और जब दरवाजे पर पहुंचते हैं यही कहते हुए नजर आते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा, यानी सलाम करते हैं। तो ये नबी बेटी का एहतराम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अतियाए परवरदिगार को देखकर एहतराम कर रहे हैं। अब नबी जो सलाम करते हैं, फकत नबी ही सलाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि 1,24,000 ये नबी, ये सब के सब सलाम करते हैं, जनाब फातिमा जहरा की इज्जत कर रहे हैं। तमाम मलाइका भी सलाम करते हैं। यही वजह है कि जब जनाब फातिमा जहरा महराब इबादत में होती हैं, तो जिस तरह जनाब मरियम के ऊपर सलाम भेजते हैं और आयत की तिलावत करते हैं, इसी तरह 70,000 फरिश्ते ये कहते हुए नजर आते हैं, या फातिमा इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, अल्लाह ने तुम्हें बरगजीदा किया है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसलिए कि जनाब फातिमा ज़हरा अजीम हस्ती का नाम है, और तो क्या ये अजीम हस्तियाँ इसीलिए दुनिया में आई, यानी खुल्दे बरी को छोड़कर, अर्श के मकाम को छोड़कर ये हस्तियाँ दुनिया में आई, किस लिए? ताकि इंसानों को पस्ती से निकाल कर खुल्दे बरी तक पहुंचा सकें। तो क्या यही तकाजा है कि इनके ऊपर जुल्म और सितम किया जाए, इनके दरवाजे को आग लगा दी जाए, इनके पसलियों को तोड़ दिया जाए? उम्मत ने कितना जुल्म और सितम किया। मासूम कहते हैं कि पांच हस्ती वो हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा गिरिया किया। उनमें सबसे ज़्यादा गिरिया करने वाली जनाब फातिमा जहरा हैं। जनाब आदम ने 40 साल तक गिरिया किया, लेकिन सबसे कम उम्र जो जनाब फातिमा जहरा को मिली, सबसे ज़्यादा गिरिया करने वाली, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये मत देखें कितने साल तक अंबिया ने गिरिया किया, कैफियत को देखें, किस कैफियत के साथ गिरिया किया गया। जनाब फातिमा जहरा गिरिया करती हैं, हालत ये है कि 18 साल की उम्र में ज़ईफ़ा नज़र आती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं और पसलियाँ टूट चुकी हैं, उम्मत रोने नहीं देती है। कहते हैं कि फातिमा के रोने से हमें अजियत होती है, हमारी नींद में खलल पड़ता है। मौला ये करते हैं कि शहर से बाहर जनाब फातिमा जहरा जाती हैं, एक दरख्त के नीचे बैठकर गिरिया करती है, अपने बाबा को याद करती है। लेकिन दुश्मनों ने ये किया, जनाब फातिमा जहरा का रोना बर्दाश्त न हुआ, उस दरख्त को भी काट दिया। एक मरतबा मौला कायनात जब जनाब फातिमा जहरा को लेने जाते हैं, तो जनाब फातिमा जहरा गिरिया कर रही हैं, रो रही हैं। पूछा कि इतनी परेशान क्यों हैं? कहा कि इन जालिमों ने ये दरख्त जिसके नीचे मैं बैठकर अपने बाबा को याद करती थी, मैं अपने बाबा के ऊपर गिरिया करती थी, उस दरख्त को भी काट दिया है। शायद यही सुन्नत करबला में बेचारी की, खेमों को आग लगा दी गई, आबिद बीमार का बिस्तर जला दिया गया, इमाम हुसैन का लाशा 3 दिन तक बेगौर कफन पड़ा रहा। हाँ अजीज़ो अजरुकुम अल्लाह, जनाब फातिमा जहरा
दुनिया से रुखसत हो जाती हैं, जनाब अस्मा से कहती हैं, ए अस्मा मैं अपने हुजरे में जा रही हूँ, जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज़ आती रहे तो समझ लेना तुम्हारी ज़हरा जिंदा है, और जब तस्बीह और तहलील की आवाज़ बंद हो जाए तो समझ लेना कि ज़हरा इस दुनिया से रुखसत हो गई है। अजीज़ों, एक वो भी वक्त आया कि आवाज़ बंद हो जाती है, जनाब अस्मा देखती हैं कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा की कोई आवाज़ नहीं आती है। एक मरतबा इमाम हसन इमाम हुसैन घर में दाखिल होते हैं, पूछते हैं हमारी अम्मा कहाँ है? कहा बच्चों पहले खाना खा लो, बाद में अम्मा से मिल लेना। कहा नहीं, हम अम्मा के बगैर खाना नहीं खाते हैं। एक मरतबा क्या देखा कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा दुनिया में नहीं है, दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। कहा बेटा ऐसा करो, जाओ मस्जिद से अपने बाबा को बुला कर ले आओ। जब इमाम हसन इमाम हुसैन मस्जिद कूफा में जाते हैं, एक मरतबा मौला कायनात ये सुनते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। घर तक पहुंचते पहुंचते न जाने कितनी मरतबा अली ज़मीन पर गिरे हैं, कभी उठते हैं कभी बैठते हैं। अजीज़ों, एक वो भी वक्त आया कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा को गुस्ल कफन देकर जब दफन करने जाते हैं, दफन करने जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा को कब्र में उतारते हैं, दो हाथ बुलंद होते हैं, कहते हैं अली लाओ मेरी अमानत को मुझे दे दो। एक मरतबा मौला कायनात कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, जिस तरह जो अमानत आपने मुझे दी थी मैं उस तरह वापस नहीं कर रहा हूँ। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।